Hello, children. In today's lecture, we will cover three topics. First one is the abolition of slavery. Second one is revolution and everyday life. And third one is the rise of Napoleon Bonaparte as the Emperor of France. The first topic is the abolition of slavery. First of all, we will come to know what is slavery. Slavery is a system of stratification. Stratification means division of something into different groups in which one person owns another as he or she would own property and exploit the slave's labor for economic gains. What I mean to say here, कि one person used to purchase another. So here I want to clear this sense of purchasing one person by another person. Now, what we will see here, Industrial Revolution started in England roughly between 1760 to 1830. And Industrial Revolution created need of two groups of people. One group was of capitalist जिन्हें हम लोग पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं, and the other group was the group of workers. या वी कैन कॉल इट लेबरर्स ऑल्सो. एक ग्रुप ऐसा था जिसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और सेकंड ग्रुप ऐसा था हु वेयर गिविंग हिज लेबर हर लेबर, दे वेयर गिविंग हिज लेबर. बट Europeans who had mostly become industrialists, they were not ready to go in different parts of the world, especially in the Caribbeans, in America, or different places where plantations were set up. तो ऐसे में उन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था. इट मीन्स अफ्रीका या एशियन कंट्रीज़ वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिडंट टुक प्लेस. So from these areas, slaves were purchased, although it has a long history how they turned into a slave. But just you need to understand here that from these places, especially from Africa, from Asia, the slaves were purchased and they were transported in ships in different parts of the world, especially in Caribbean islands, and there they worked for the whole life, and they were giving their labor, and in the full extent they were exploited. And in Caribbean islands there were plantation of indigo, sugar, coffee, which was in very high demand in different parts of the world. So these businesses were performed basically by the slave trade. So here you can see these are especially French, Martinique, Guadeloupe, Saint Domingo. You will see in this lecture where these are situated. So these are especially French colonies where slave trade was carried on. You can see here from Africa. From Africa, slaves are carried to Europe, to America, and again to South America. From Africa to Europe, and again from Europe to South America and North America, slaves were carried. So there was a triangular slave trade between Europe, Africa, and America. Now, as you are reading in this chapter, first of all, go through this picture. With this picture, you can understand how much slave trade was carried on and what was the condition of the slaves. Here you can see that they were having extremely miserable condition. They were not having any type of facilities are not given to them. They are not called by their names. They are called by their numbers. And in Caribbeans, they were packed, they were shackled, and they were carried from Africa to different parts of Europe and North America and in South America. Now you can see here French merchants sailed from Bordeaux and Nantes to the African coast. These were Bordeaux and Nantes, these two are in France. They were carried from African coast and carried to Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo. These are the places situated in the Caribbean island. These are the places situated in Caribbean island. Here Caribbean islands are here.
they are carried to Caribbean islands where they worked for their whole life. Now, as the revolution was going on, as the French Revolution was going on, people were talking about the rights of man. So it was generally discussed that do these slaves also given the rights of getting free? So there were long discussion carried out in National Assembly where these slaves could be given their rights to become free. But as you know कि industries जो है वो dependent थे इन slaves के ऊपर और without their labor it was quite impossible to run the industry. तो इसलिए नेशनल असेंबली ने बहुत सारे डिबेट्स किए लेकिन फाइनली जो उनका कंक्लूजन हुआ कि दैट स्लेवरी विल नॉट बी एबोलिस्ड, यानी जो ह्यूमन बींग को जो खरीदा जाता था बेचा जाता था, दिस सिस्टम विल नॉट कम टू एन एंड. But during the French Revolution in 1793-94, when convention came in power under Maximilien Robespierre, so finally it was decided to abolish slave trade. तो 1794 में कन्वेंशन ने स्लेवरी के लिए बहुत सारे कानून बनाए और फाइनली slave trade came to an end for certain time, for almost for 1 year. But again when convention's reign came to an end, और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रॉम 1795 टू 1799 दैन अगेन नेपोलियनिक एरा 1804 टू 1815 द स्लेवरी वॉज अगेन री इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि नेपोलियन is said that he is also the birth of the revolution. He is also a person who came into power due to revolution. But according to Napoleon, in this growing industrialization, it is quite impossible to run the industries without slaves. So due to this, finally slavery was reintroduced during the reign of Napoleon Bonaparte. But finally, this movement continued for so many years. In 1848, finally slavery came to an end. It means it was a long drawn process. After a very long reign of sufferings, finally slaves got their right. Africa से India या फिर different parts of the world, they were carried, they were having a life where it's beyond imagination, and finally this slavery came to an end in 1848. Now come in the next topic. This is how a revolution influenced everyday life. It means कि when French Revolution was going on from 1789 to 1799, so how was the situation of the people who were living in Europe and what type of changes came? So particularly in France, what we see कि censorship was abolished. Censorship हम लोग कहते हैं कि जब प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाए, अगर आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्रिंट, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ censorship. So when revolution started in 1789, censorship came to an end, which was most remarkable. अब क्या था कि न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करना, अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करना, पैम्पलेट्स प्रिंट करना, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, दीज थिंग्स फ्लडेड इन टाउन्स ऑफ फ्रांस. और टाउन से जो है नाउ द आइडियाज़ ऑफ मॉन्टेस्क्यू, आइडियाज़ ऑफ रूसो, आइडियाज़ ऑफ लॉक, अबी साइंस, तो दीज फ्लोड ओवर द कंट्री साइड ऑल्सो. और तुम लोग देख चुके हो कि बहुत सारे पॉलिटिकल सिम्बॉल्स आए उन लोगों के लिए जो कि पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, बिकॉज लिटरेसी रेट वॉज क्वाइट लो. तो इन दैट phase there were many political symbols came that was especially for those who were not able to read and write. रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल करके रख दिया. जैसा कि इंडिया में भी तुम लोग देख चुके हो कि व्हेन रिवॉल्यूशन वाज गोइंग ऑन, व्हेन फ्रीडम स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन, एट दैट टाइम गांधी टोपी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. तो फ्रांस में भी रेड कैप, पायरागियन कैप बहुत पॉपुलर था बिकॉज इट वाज सिम्बलाइजिंग लिबर्टी. लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, दीज बिकेम द वॉच वर्ड्स. लोग प्रिंट के द्वारा अपने आइडियाज़ को ला रहे थे, अपनी अपनी बात को प्रिंट के द्वारा प्रेजेंट कर रहे थे. तो इट मीन्स कि रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल करके रख दिया. वुमेन घर से बाहर निकली, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स को बनाया, प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, एक लोग गैदर होते थे. फेस्टिवल में भी लोग जो है रिवॉल्यूशन की बातें किया करते थे. प्लेस के द्वारा जो है दे वांटेड टू कन्विंस
those who were not able to understand, बहुत सारे songs आए which were particularly written during the revolution time. So these were, it means कि revolution had lot of impact upon the common people. और रिवॉल्यूशन जब भी होता है उस समय का जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इन्वायरमेंट. जैसे इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, तो एट दैट टाइम नेशनल एंथम वाज रिटन, नेशनल फ्लैग वाज मेड. इन द सेम वे व्हेन रिवॉल्यूशन वाज गोइंग ऑन इन फ्रांस, the national anthem Marseillaise was written by Roger Dalla Italy, and in the same way national flag was made of red, white and blue color. Liberty, equality, fraternity was the slogan of French Revolution. So it means revolution had a lot of impact on everyday life. Now our last topic is rise of Napoleon Bonaparte. अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आ गए और नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, एंड व्हेन रिवॉल्यूशन वाज गोइंग ऑन उस समय नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ थे. तो नाउ स्टूडेंट्स, नेपोलियन बोनापार्ट जो ऐसा नहीं हुआ था कि अचानक वो सीन में आ गए, मैंने अचानक वो स्टेज में आ गए और उन्होंने ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग. तो दैट डिडंट हैपन इन फ्रांस. नेपोलियन बोनापार्ट पहले से ही व्हेन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 और when National Assembly came in power, at that time Napoleon Bonaparte was in French military and he was in the post of artillery officer. So first of all, we will come to know from where Napoleon Bonaparte came, means ki what was his birthplace, which was his birthplace. So Napoleon Bonaparte born on 15 August 1769 at Ajaccio city in Corsica. कॉर्सिका एक आइलैंड है इटली में, और वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का बर्थ हुआ था, और उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड है दैट वाज इन कॉर्सिका आइलैंड. तो इसलिए जब उनकी फैमिली जो है व्हेन दे शिफ्टेड फ्रॉम कॉर्सिका टू फ्रांस, तो हीज फ्रेंच वाज वेरी पुअर बिकॉज हिज बैकग्राउंड वाज ऑफ इटालियन. तो ड्यू टू दिस हिज फ्रेंच वाज वेरी पुअर. और उनकी जो हाइट थी वो शॉर्ट हाइट के थे. शॉर्ट हाइट मीन्स उनकी जो हाइट थी वो लगभग 5'4" की थी. तो मिलिट्री में इसे शॉर्ट हाइट कहा जाता था बिकॉज ही वॉज रीडिंग इन अ मिलिट्री स्कूल ऑफ फ्रांस इन पेरिस. तो इसलिए मिलिट्री में इसे शॉर्ट हाइट माना गया. तो ही वॉज बुलीड बाय हिज क्लासमेट्स अलॉट. लेकिन नेपोलियन जो है उन्होंने इसे नेगेटिवली नहीं लिया, और वो हमेशा चाहते थे कि उनके जो फ्रेंड्स है वो नोबल फैमिली से हो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेंच फैमिली एंड अ थर्ड स्टेट कैटेगरी फैमिली. तो ड्यू टू दिस ही ऑलवेज वांटेड फ्रेंडशिप विथ नोबल फैमिली मेम्बर्स, स्टूडेंट्स ऑफ नोबल फैमिली मेम्बर्स. बचपन में कहा जाता है कि वो जो है फोर्ट्स बनाते थे और फिर उस फोर्ट्स को खुद ही डिस्ट्रॉय भी कर देते थे. It means कि always he had lot of ideas. He used to read lot of books and from there he took lot of ideas. वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन अराइज होता है तो आइदर वो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता है या फिर वो उस चीज़ में ही अपने आप को डेवलप करता है. तो नेपोलियन के साथ भी यही हुआ कि उनको जो समय मिला आइसोलेशन का, इट मीन्स कि जब उनके फ्रेंड्स उन्हें बुली करते थे तो उस समय नेपोलियन ने अपने आप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा यूज़ किया. ही रेड लॉट ऑफ बुक्स, ही यूज टू मेक कैसल्स, ही यूज टू मेक फोर्ट्स एंड डिस्ट्रॉय देम. नेपोलियन के फादर जो थे वो एक एडवोकेट थे और उनकी फैमिली इकोनॉमिकली बहुत अच्छी नहीं थी. दे वे फ्रॉम मिडिल क्लास. और लुइस 16 के कोर्ट में नेपोलियन के फादर जो है वो एक एडवोकेट थे. नेपोलियन आर्टिलरी ऑफिसर से ही वॉज प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ ब्रिगेडियर जनरल when he was sent to Italy in an Italian mission. And those who were fighting with Napoleon, they were quite senior from him. In spite of it, he showed his courage, he showed his leadership capability in Italian campaign, and after that directly started feeling that Napoleon Bonaparte is a threat for them. इट मीन्स कि डायरेक्टरी जो कि आया था फ्रांस में आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ कन्वेंशन, वो पॉलिटिकली इनस्टेबल था. और नेपोलियन बोनापार्ट जो है अपने कैंपेन्स के कारण, मिलिट्री कैंपेन्स के कारण, क्योंकि जब वो इटालियन कैंपेन से वापस आए थे तो ही बिकेम वेरी पॉपुलर. तो डायरेक्टरी चाहती थी कि नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखा जाए.
तो अगेन ही वॉज सेंट इन इजिप्शियन कैंपेन, और वो जहाँ भी जाते थे वहाँ सक्सेसफुल होते थे। उनके बारे में कहा गया है कि ही फॉट मोर देन 70 बैटल्स एंड वेरी फ्यू बैटल्स ही लॉस्ट। तो डायरेक्टली चाहती थी कि वो उनसे दूर रहे, फ्रांस से दूर रहे, लेकिन नेपोलियन की तो डेस्टिनी ही थी। एंड फाइनली इन 1804 नेपोलियन हिमसेल्फ क्राउन्ड एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर बना दिया, क्योंकि पॉलिटिकली इनस्टेबल डायरेक्टरी वाज नॉट इन अ कंडीशन टू अपोज नेपोलियन, एंड इवन द कॉमन पब्लिक was very much in Napoleon's side, because he became very popular among them. नेपोलियन ने ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को जीत लिया था, क्योंकि इफ यू गो थ्रू दिस यूरोपियन मैप ऑफ यूरोप, you can see that leaving United Kingdom, France was under Napoleon. He conquered Spain. He conquered, at that time, Germany was divided into 300 states. He conquered whole Germany, whole Italy. At that time, Italy was also divided into 7-8 parts. He conquered Italy. There were Austrian Empire here, Poland. It means कि whole Europe was conquered by Russia also. The whole Europe was conquered by Napoleon Bonaparte. It means Napoleon has become a threat for England, and also he became a threat for all the monarchs of Europe, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, हर जगह पर मोनार्क थे, और नेपोलियन ने सबको हरा दिया था, या फिर हर किसी को कंपेल किया था कि दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशंस। और नेपोलियन ने जब पूरे यूरोप को जीता तो ही ब्रॉट नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ये एक स्पेशल लॉ है जो कि नेपोलियन के समय आया था, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804। अब इस नेपोलियनिक कोड ने यूरोप को क्या दिया? तो नेपोलियनिक कोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने हर कोई इक्वल था, देयर वाज नॉट एनी डिफरेंस ऑन एनी बेसिस। तो दैट वाज not only implemented in France but in entire Europe, because Napoleon won entire Europe, क्योंकि हर जगह पर उनके अपने ही रिलेटिव्स जो है वो क्राउन में थे। तो नेपोलियन ब्रॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी दी, क्योंकि जिस समय कन्वेंशन आया था, फिर कन्वेंशन डिसॉल्व हो गया, उसके बाद डायरेक्टरी आई। डायरेक्टरी को बनाने वाले जो हायर मिडिल क्लास के लोग थे, जो रिच पीपल थे, तो उन्होंने क्या किया था कि लोगों को जो राइट मिला था रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में, उसे उन्होंने छीन लिया था। तो नेपोलियन ने हर किसी को राइट टू प्रॉपर्टी दी। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम को एंड कर दिया। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या है? तो लिटिल बिट आई वांट टू डिस्कस हियर। देयर वाज अ ट्रायंगुलर या पिरामिडल पावर शेयरिंग। यू कैन सी हियर किंग, एज द किंग हैड डिवाइन राइट्स। जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो कि राजा के पास डिवाइन राइट्स होता था। तो ओवरऑल जितनी भी लैंड थी फ्रांस की, इट वाज अंडर किंग। किंग यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट हिज लैंड अमंग द नॉबल्स, जो कि मिलिट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। किंग लैंड उन्हें देते थे। द किंग यूज्ड टू गिव हिज लैंड टू द नॉबल। नॉबल जो है फिर से लैंड अपना देते थे वैसल्स को। वैसल्स जो है वो फिर से काम करवाने के लिए दे यूज टू गिव लैंड टू द मैनर्स। मैनर्स डिड नॉट हैव एनी ऑनरशिप राइट, लेकिन ये मैनर्स जो है ये लोग विलेजेस में रहा करते थे, और इनके लिए एक आलिशान बंगलो होता था जिसे मैंसन कहा जाता था। तो मैनर होते थे, और मैनर्स के बाद जो सबसे पुअर कंडीशन था ये था सर्फ का। वी कैन से SERF, सर्फ। तो दे वेयर हैविंग वेरी मिजरेबल कंडीशन। तो ये जो सर्फ थे, इस पूरे सिस्टम में सबसे एक्सप्लॉटेड सेक्शन कहलाते थे, क्योंकि राजा तो बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में था। उसने अपने लैंड को दे दिया नॉबल को कि आपको काम करवाना है, रेवेन्यू पे करना है। नॉबल ने भी अपने लैंड को दे दिया वैसल को, वैसल ने अपने लैंड को दे दिया मैनर्स को, और मैनर्स अपनी लैंड पे काम करवाते थे सर्ब्स को। तो इन दिस सिस्टम सर्फ वाज इन अ वेरी पुअर कंडीशन। तो व्हाट नेपोलियन डिड, और इस दिस एंटायर सिस्टम वाज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि फ्रांस में पीस ऑफ लैंड को कहा जाता था फीफ, फाइव।
not 5. So due to this system is called feudal system. So Napoleon, when came in power, he totally abolished feudal system and freed peasants from serfdom. Serfdom means कि as a serf they need to pay lot of taxes to the manor. Manor वो लोग थे जो कि सर्फ से काम करवाते थे. तो serfdom came to an end and improvement in transport and communication. That also started during the Napoleonic era. तो नेपोलियोनिक एरा हम लोग कहते हैं फ्रॉम 1804 टू 1815. तो एक तरह से नेपोलियन ने पूरे यूरोप को यूनाइट किया था. पूरे यूरोप में वो एक तरह के कानून को लेकर के आए थे. उन्होंने वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया था. राइट टू प्रॉपर्टी दी थी. फ्यूडल सिस्टम को एंड किया था और इस तरह से उन्होंने पूरे यूरोप को कनेक्ट किया था. लेकिन नेपोलियन ने क्या नहीं दिया? तो ही डिडंट गिव राइट टू वोट, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी. नेपोलियन ने सेंसरशिप को वो वापस लिया है. दैट वाज आल्सो इट मीन्स कि ही हैड टेकन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यानी ये दो चीज़ें थी जिसे नेपोलियन ने नहीं दिया और बाकी सारी चीज़ें दी और इन दोनों चीज़ों को नहीं दिया. तो बाद में नेपोलियन के फोर्स को या नेपोलियन को यूरोपियन जो जनता थी उन्होंने एक इन्वेडर की तरह बाद में वो मानने लगे. क्योंकि जब पहले नेपोलियन ने जब अटैक करना शुरू किया तो ही वॉज वेलकम्ड बाय द यूरोपियन पीपल. बट लेटर नेपोलियन वॉज कंसिडर्ड एज नॉट अ लिबरेटर बट समटाइम्स एज अ इन्वेडर. क्योंकि उन्होंने यूरोप में टैक्स को बहुत बढ़ा दिया. यूरोप के लोगों को फोर्सफुली आर्मी में वो इंगेज करते थे, आर्मी में उसे रिक्रूट करते थे. तो ड्यू टू दिस ही वॉज लेटर कंसिडर्ड एज अ इन्वेडर. लेकिन पूरे यूरोप को यूनाइट करने का जो अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो दैट वेंट टू नेपोलियन बोनापार्ट. Okay, now come in the last, which is very, very important. What was the legacy of the French Revolution? Why it is very important to read French Revolution? So if you go through this European map, you can see, yeah, you try to understand that at that time these countries were not existing. Spain was having an emperor. Germany was divided into 300 parts. Italy was also divided into 8 to 9 parts. Entire Europe had monarch. Russia had also monarch. All the countries had monarch. It means they were divided into very small parts. Due to Napoleon, this entire setup had changed. It means Napoleon brought uniform laws in entire Europe. एक तरह का कानून लेकर के नेपोलियन आए. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? यूरोप वॉज कनेक्टेड ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट. तो इट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज रिजल्टेड इनटू एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क. नेपोलियन भी एम्परर थे बट ही वॉज नॉट एब्सोल्यूट. नेपोलियन ऐसे मोनार्क थे जिन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दी थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया था, फ्यूडल सिस्टम को एंड किया था. यानी कि उनका जो बर्थ था इट वॉज ड्यू टू रिवॉल्यूशन. इट वॉज ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन. बर्थ मीन्स कि अगर वो एक अच्छे लीडर बने और अगर वो एज अ लीडर उन सारे पॉलिसीज़ को, उन सारे फिलॉसफीज़ को वो लेकर के आए जो कि एक्चुअली रिवॉल्यूशन की फिलॉसफी थी. तो एब्सोल्यूट मोनार्क जो है, दिस सिस्टम हैज़ कम टू एन एंड ड्यू टू नेपोलियन बोनापार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज़ गिवन दैट वाज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. और फ्रांस के लोग अब जनता वाले कंडीशन से नाउ दे वांटेड टू बिकम अ सिटीजन. दे वांटेड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो दीज आइडियाज वेयर द आइडियाज ऑफ एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन. यानी आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ फ्रैटर्निटी, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता जिसे हम लोग कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ नेशंस, राष्ट्र का फॉर्मेशन, ये नेपोलियन या ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही कंट्रीब्यूशन था. और लास्ट वन इज अबाउट कॉलोनाइज्ड कंट्रीज. जैसे इंडिया एट दैट टाइम वाज अ कॉलोनी. अफ्रीका के जो कंट्रीज थे दे वेयर कॉलोनीज. कॉलोनीज हम लोग कहते हैं व्हेन अ पावरफुल रिच कंट्री controls a poor country, a backward country where industrialization has not taken place. So India at that time was a colony of England. So even in India, Raja Ram Mohan Roy was very much inspired by the ideas of
French Revolution. Tipu Sultan wanted to get help from France to bring independence, to get independence from Britain. So it means that even in colonies, the ideas of freedom flowed, and colonies wanted to free from the bondage of their colonizers, and they started movement against their colonizers, and they wanted to set up a sovereign nation state. तो दैट वाज द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लेगेसी मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को क्या दिया. वैसे जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी वसीयत लिखा करते हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने भी अपनी वसीयत लिखी. उन्होंने वर्ल्ड को क्या दिया, तो उन्होंने वर्ल्ड को लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, दीज थिंग्स वेर गिवन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ओके, so that's all. Now I am ending this lecture. God bless you all.